વેલકમ ટુ સોપબોક્સ ટોક્સ. આજે અમારો હું ગુજરાતીમાં પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ, ઇંગ્લિશ પણ નાખશું, થોડું હિન્દી પણ નાખશું. તો અમારો આજે 27મો કોન્સ્ટન્ટ શો દર ગુરુવારે સોપબોક્સ ટોક્સ ફેસબુક લાઈવ અને ઝૂમ પર થઈ રહ્યો છે. અને અલગ અલગ ટાઈપના સ્પીકરો નોલેજ શેરિંગ અને કેરિંગ કરીને અમે બધાને નોલેજ આપી રહ્યા છે. એટલીસ્ટ એક ફાયદો થાય છે કે જ્યારે અત્યારે લોકડાઉનમાં બધા બિઝી છે અને સ્ટ્રેસમાં છે, ઘરની અંદર 4 દિવાલમાં ફસાયેલા છે, તો આ એક માધ્યમ એવો છે જેનાથી બધાને કંઈ ને કંઈ સારું નોલેજ મળે છે. અને આમાં લોકડાઉનમાં બહુ ઘણા લોકોને એને સ્ટ્રેસમાં બીમાર થઈ ગયા છે બધા. ઘણી બધી ગોળીઓ લેતા હોય છે, ખબર નથી હોતી. અને આપણે અત્યારનું જનરેશન જે હું કહું છું એ છે પિલ પોપિંગ જનરેશન, પીપીજી. પિલ પોપિંગ એટલે કાંઈ પણ માથું દુખે તો એનાસિન લઈ લો, ક્રોસિન લઈ લો, અને તરત તાવ આવે તો ડૉક્ટર પાસે દોડીને જવાનું, ગભરાઈ જાય, અરે હવે શું થશે મને. તો ધીઝ આર વેરી બેડ સિમ્ટમ્સ. અને બહુ આગળ જતાં અત્યારે આપણું યંગ હોય બોડી, તો મે બી બોડી આપણું એડજસ્ટ કરી લે છે ટેબ્લેટ્સને. પણ આગળ જતાં જ્યારે તમારી એજ જેમ જેમ વધતી જાય અને આપણે જેમ જેમ ઉંમર લાયક થતા જઈએ ત્યારે બહુ ઇશ્યુઝ આવે છે. અને પછી ત્યારે ખબર પડે કે ત્યારે હું જવાન હતો, યંગ હતો, ત્યારે મેં આ બધું લીધેલું. કોર્પોરેટ કલ્ચરમાં કામ કરવાની પણ બહુ તકલીફ છે, બહુ સ્ટ્રેસફુલ કામ હોય છે. એટલે ઘડી ઘડી એસ્પિરિન ટેબ્લેટ્સ ને બધું લેતા કરીએ છીએ. એટલે આજનો જે પ્રોગ્રામ છે ખાસ આરોગ્ય માટે, આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે છે. અને જેટલી ટેબ્લેટ્સ, જેટલી ગોળીઓ, જેટલું ડૉક્ટરથી દૂર રહીએ એટલું સારું. આજનો પ્રોગ્રામ બીજો એક પણ ઇસ્યુ છે આમાં, કે ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બહુ ખતરનાક છે કે આપણે બધા ટેબ્લેટ લેવાની બંધ કરી દઈએ અને બધા સાજા નરવા રહીએ તો ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી કરે શું. એટલે એ લોકો માટે આ એક એવું છે કે આપણે બીમાર રહીએ, આપણે સ્ટ્રેસમાં રહીએ તો એ લોકોની દવાઓ વેચાય. આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ ફાર્મા, દે આર વેરી ગુડ. આઈ એમ નોટ અગેન્સ્ટ ડોક્ટર્સ બીકોઝ વી કન્સિડર ધેમ એઝ ગોડ્સ એન્ડ દે સેવ અસ ફ્રોમ ગિવિંગ અસ લાઈફ. ડોક્ટર્સ વગેરે આપણે ન કરી શકીએ, પણ આપણે જો સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખીએ તો આપણે એવોઇડ તો કરી શકીએ કે ડોક્ટર પાસે જેટલા બને એટલા ઓછા જઈએ. That is what our whole objective is. So today we have international coach, acclaimed life coach, author of Zero Medicine book, જેમને એક બુક લખી છે અને એમને 35 વર્ષથી લાઈફ કોચ તરીકે કામ કરે છે. અને ઝીરો મેડિસિનની એક બુક લખી છે જેમાં એમને બધા સિક્રેટ્સ શેર કરેલા છે કે હાઉ ટુ રિમેન હેલ્ધી બાય નોટ ટેકિંગ એની મેડિસિન્સ. પોતે આજે 15 વર્ષથી સાહેબ આપણા દવા નથી લીધી. એમને પણ ઘણા પ્રોબ્લેમ હતા લાઈફમાં, પણ એ શેર કરશે આજે બધું તમારી સમક્ષ. स्ट्रेस फिर क्या करता है, स्ट्रेस से रिलीफ लेने के लिए सिगरेट पी लेता है या 2 कप चाय पी लेता है, या तो ये हमारे यहाँ जो रिचुअल जाते हैं ना, मंदिर चले जाते हैं. ये मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना या फिर सिगरेट पीना या दारू पीना, मेरे हिसाब से ये सोलेस देता है. ये निवारण नहीं करता है, सॉल्यूशन नहीं देता है. तो आदमी को रिलीफ मिलता है मगर टेम्पररी. भगवान ने बोला भैया मैंने तुमको कोई प्रथा ये करने के लिए नहीं बोली है, रिचुअल्स करने के लिए नहीं बनाया. मैं तुम्हें हर टाइम डायरेक्शन दे रहा हूं. मेरे सांस में मैं तुम्हें मेरे पे ध्यान दो. तो कबीर का जो दोहा है वो अल्टीमेट है हमारे सब के लिए. इसीलिए मैं और मेरी फैमिली हम लोग यूनिवर्सल हो गए हैं. सिर्फ भगवान जो सांस में जुड़ा है उसको ही मानते हैं और कोई हमारे बनाए हुए भगवान को नहीं मानते. जिसको क्योंकि हमारी बनाई हुई दवा, हमारा बनाया हुआ भगवान, ये सब हमें धोखे में डाल देता है. हमारा भगवान हमारे एहसास में है. आप कौन, आपको जीव देने वाला भगवान को आप बनाएंगे क्या? आपको जिसने बनाया है आप उस भगवान को बनाएंगे, उसकी मूर्ति बनाएंगे, उसकी टेम्पल बनाएंगे, उसके चर्च बनाएंगे, उसके मस्जिद बनाएंगे. तो उसके कारण ही हम लोग दवा बना रहे हैं. क्योंकि भगवान का एहसास करना, उसका थैंक यू कहना, उसको सांस में याद करना भूल गए. तो भटक रहे हैं तो फिर स्ट्रेस रिलीफ ले रहे हैं क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही. तो सुनिए, आखिर में एक ही पॉइंट है कि ये सारी चीज का निवारण क्या है कि
ये इसकी समरी है कि हमें शांति चाहिए। जैसे शांति की आप इच्छा करते हैं, तो मैंने जैसे कहा 15 सेकेंड आप सांस पे ध्यान दीजिए, और भगवान जो सांस से जुड़ा है, जो जीव देने वाला है, हमें और पूरी सृष्टि का रचना करने वाला है, जिसको कुरान में हम कहते हैं रहमान और रहीम, जिसको कहते हैं हय्युम एंड कय्यूम, जो लाइफ क्रिएटर है उसका सस्टेनर। रहमान मतलब ऑल कंपैशनेट, पूरी सृष्टि को ध्यान रखने वाला, और मर्सीफुल इंडिविजुअली आपको भी। आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि जिसने चींटी, इतने जानवर, इतने पक्षी, इतने पानी के अंदर जानवर, सबका जो ध्यान रखने वाला है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, वो क्या आपको डॉक्टर के हवाले करेगा? वो आपका ध्यान नहीं रखता है। ये पूर्ण मनुष्य की वृत्ति ही बकवास हो गई है। और आज हम लोग 9 महीना से भगवान हमको सिखा रहे कि देखो, तुमको मैंने हिलना चलना सब बंद कर दिया, तुम बाहर निकलो, अपना मुंह बंद करके निकलो। मगर सच में जो भगवान को मानने वाले हैं, उसको कोरोना का भी भय नहीं है, वो हर तरीके से खुशहाल है। जैसे हम लोग सब अभी इस हालत में भी जूम में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये लाइक माइंडेड का जमावत है। ठीक है, तो अभी हमें इससे कंक्लूजन क्या करना है कि हमें ये पाथ लेना है। और ये जो भटका, पूरी दुनिया ने हमको भटका के रखा है, ये क्यों, किस तरह से ये सक्सेस हो गया? हमको क्या एजुकेशन में क्या गुफअप हुआ? जैसे हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि किसने ऐसी बनाई कि हम सृष्टि को इस तरह देखने लग गए? इसके लिए मैंने 35 इयर्स का अनुभव के साथ, जो लाइफ कोच का अनुभव है, और मेरा 2 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड रिनोन डॉक्टर जो मेरे घर के पास है, जो खुद MBBS, MD और PhD है, उसका जो मुझे शिक्षण मिला, और मेरा 35 इयर्स का जो साइकोलॉजी का, बिहेवियर साइंस का प्रैक्टिकल अनुभव था, इसको जोड़ बना के मैंने ये 8 सेशन का एक मिनिमम, पहली बार लाइफ में ये पैंडेमिक के कारण प्रोग्राम बनाया। पहले क्या करता था, 3 दिन के प्रोग्राम, लेक्चर, वर्कशॉप, मगर ये सिस्टमैटिक पहली बार करा, क्योंकि मैंने देखा कि ये अगर नहीं करूंगा तो ये पूरी दुनिया हमारे हाथ से हमारी दुश्मन बन जाएगी, जैसे आज हो गया है। आज अगर हम मर जाते हैं तो कंधा देने वाला भी भाग जाता है, ऐसी हालत हो गई। एक ऐसा स्टेज आ गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग अतिथि देवो भवो के बदला अतिथि को देख के कोरोना से डरने लग जाते हैं। कैसे उल्लू बन गए? वो एक गाना है ना, किसी गायक का, आशिक बनाया तुम्हें, मैं उसको नए स्टाइल से बनाया, उल्लू बनाया तुम्हें। कुछ साल के बाद WHO हमको यह गाना सुनाएगा कि बेवकूफों की कमी नहीं, एक ढूंढो पूरी इंसानियत मिलती है। तो भैया, हमने सोचा कि हमारे गांव के लोग उल्लू है, अभी पता चला कि सारी दुनिया के सब गांव के लोग उल्लू है। तो आज के बाद हमें इसके पर स्टडी करना है। और मैंने इस बार क्या चाहता हूं कि देखो, ये तो सब चेहरे से ही पता चल जाएगा कि सबके दिल में ये सच लग रहा है, मगर सच सो व्हाट? अब ये सच का मैं क्या करूं कि मेरी फैमिली, मैं खुद इस चीज से प्रोटेक्ट हो जाओ, और प्रोटेक्ट होने के बाद मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी को इसका ज्ञान। तो ये जो चीज है उसको सम अप करके समझना, उसका एक डिजाइन है 6 मैट्रिक्स। 6 मैट्रिक्स में वर्ल्ड के जितने भी बिहेवियर साइंटिस्ट ने जो जो बोला है, उसको मैंने एक माइंड मैप बनाया। अब आप सोचिए कि ये माइंड मैप बनाने के बाद आपको कोई उल्लू बनाने की कोशिश करेगा ना, तो आपको माइंड बोलेगा नहीं नहीं, ये उल्लू बना रहा है। आई एम गोइंग टू फॉलो माई इनर गाइडेंस।
then you become you seal yourself from falsehood. So otherwise आप सोचिए कि ये मेडिकल कोर्स में कितना बड़ा उल्लू बन गया. हमारे बच्चे 99% मार्क्स लाते हैं तो फिर मेडिकल सीट. अब मेडिकल सीट में क्या हुआ कि उसको नाम दिए गए, वो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से देखो, सबका नाम दो. इस तरह मूवमेंट हुआ तो ये जर्म्स का नाम, इसका नाम हुआ तो ये जर्म्स का नाम. मगर ये जर्म्स का नाम देने से क्या होता है, उस कैसे उत्पन्न होता है वो सोचो. क्यों उत्पन्न होता है? अगर आपके घर में आपने कोई जगह कचरा पड़ा है तो मॉस्किटो आ जाएगी ना. तो मॉस्किटो क्यों आई? क्योंकि आपने कूड़ा घर में रखा. तो टॉक्सिसिटी आएगी तो जर्म्स आएंगे. आप अगर पानी को बहने के जगह आप उसको पॉन्ड बना देंगे तो उसमें वो वीड्स आ जाएंगे. और पॉन्ड में क्या होता है, कितने मच्छर पैदा होने लग जाते हैं ना. तो हमें ये पॉन्ड बना के जीना नहीं है, हमें बहना है, पानी को झरने की तरह छोड़ना है. तो ये चीज हमको कौन किस क्या क्या गड़बड़ के कारण हम उल्लू बनते हैं, उसके 6 मैट्रिक्स के पॉइंट क्या है. एक के हमारी दृष्टि को कोई गलत दिखा रहा है, डिविएट कर रहा है. हमको जो सोर्स से समझना है वो उससे हटाता है. तो वो एक है. फिर दूसरा, हमारी जरूरत की हमें मालूम नहीं है. हम बिना जरूरत के जी रहे हैं, हम खाली वांट में जी रहे हैं. हमारी आज की तारीख में कुछ भी पैसे न हो मगर हमको 3 टाइम खाना मिल जाए तो हमारी जरूरत पूरी हो जाती है और हम आनंद से रह सकते हैं. तो ये जरूरत का पहचान ही नहीं है. उसके लिए फिर हम लोग ट्रैकिंग में पिकनिक जाते हैं, तब मिलजुल के अच्छा लगता है. अगर हम जरूरत देखे जाए तो हमारी जरूरत क्या होगी? अच्छा खाना पीना, दोस्तदार होना, 4 यार से बात करना, फिर हमारी थोड़ी डिग्निटी बढ़े, 4 लोग के साथ हम कुछ अच्छे काम करें, फिर हमारे आत्मा को शांति मिले. ये हमारी जरूरत है. ये इससे हमको कौन भटका रहा है? ये भटकाने वाले को फिल्टर करने का हमारा प्रोग्राम है. ये बेचारे डॉक्टर साहब भी अगर सीखेंगे, जिसने पता नहीं 40 लाख 25 लाख 50 लाख खर्चा करके मेडिकल कोर्स करते हैं, मगर जैसे ये 6 मैट्रिक्स सीखते हैं तो उनके सिर पे, अरे यार ये पहले सीखा होता तो मैं तो गलत चीज प्रैक्टिस करने लग गया. मैं तो बीमारी को नियंत्रण करने, आप कंट्रोल करेगा तो वो बीमारी जाती नहीं है. तो ऐसा प्रोफेशन क्या काम का? तो ये प्रोग्राम की बात अगर पहले सिखा देते तो बेचारे के 40 लाख बच जाते और उसके 8 साल 6 साल मेडिकल ट्रेनिंग के बच जाते और कुछ अच्छी चीज करता. और अच्छी चीज बहुत करने लायक है. ये प्रोफेशनलिज्म से हमको हटना है. डरा के लोगों से पैसे लेना नहीं, डरा के नहीं लेना है. मेल जुल के विन विन से पैसे एक दूसरे का साथ लेके काम करना है. तो ये चीज अगर हम ये जो चीज कोर्स है, ये कोई ऐसा चीज नहीं, ये भगवान की कृपा है कि मैंने इस तरह का डिजाइन करा. तो अभी मेरे साथ आज नसीम और हमारे महेश्वरी जी, हाँ वो सब है. वो लोग तो 3 सेशन ही अटेंड करे हैं, उनके और 5-6 सेशन बाकी है. उनको कुछ फीडबैक देना हो तो बोले. अभी अंदाजे से मुझे मालूम है कि आपको सबके दिल में सच घुस गया है. जो भी क्वेश्चन है, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, वो आप बाद में भी पूछ सकते हैं. तो अभी मैं रुक जाता हूँ. महेश्वरी भाई अगर है तो उनको बोलने के लिए बोलिए. बनवारी लाल जी हैं आप? हाँ जी. हाँ तो आइए ना. हाँ. नमस्ते सब लोगों को, सारे पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्ते. जैसे सैफी साहब ने बताया है, जीरो मेडिसिन विजडम. सो रियल सेंस में
पूरा थ्योरी एंड कंसेप्ट ये वर्डिंग से ही क्लियर होता है। व्हाट यू नीड इज ए विजडम टू लिव द लाइफ। साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, जैसी सोच वैसी प्रकृति। तो अपने को अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। थॉट प्रोसेस अगर प्योर हो जाएगा तो पॉसिबली एंड श्योरली अपने को कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये कंसेप्ट अभी जस्ट शुरुआती तौर पे 3 सेशन में सीखा है। अभी तक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट 3 वीक्स से आई एम एंजॉयिंग बेटर लाइफ एंड यू स्टार्ट practicing it. What we require is continuous hammering to practice this. ये रेगुलर बेसिस में अगर इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉसिबली, जैसे सैफी साहब ने 15 साल में कोई दवाई नहीं खाया, आज ज्यादा करके 99% जनता को दवाई खानी पड़ रही है, उससे धीरे धीरे हम बाहर आ सकेंगे, ऐसा मेरा भी मानना है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। भरत भाई, हेमंत भाई, थैंक यू। थैंक यू। और एक बात कहनी है कि ये शरीर हमारा एज होगा, एजिंग, बॉडी एजिंग होगा, हम डेफिनेटली विल डाई, बट आवर सोल इज गोइंग टू ग्रो। दिस लाइफ पर्पस इज टू एनरिच आवर सोल। एनरिचमेंट ऑफ सोल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्यूरिफाइंग द बॉडी। आप मरेंगे जरूर, मगर बीमारी से नहीं मरेंगे, आपके ऑर्गन नहीं फेल होंगे। हमारे कितने नेता, पॉलिटिकल लोग, पैसे वाले लोग, आखिर में जाके उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते, तो क्या फायदा? उसके सोल तो खलास हो गया है। सोल का एनरिचमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द 5 ऑर्गन्स। सो आत्मा, शरीर और माइंड, ये तीनों का जोड़ है, ये हमें समझना है। ठीक है, ओके। नसीम भी है जो कि क्लास में है, अगर वो आ सकती है तो लेट हर स्पीक। या नसीम मैडम। सिडनी से है ना, आई थिंक ही इज फ्रॉम सिडनी। ओके, चलो। ओके, क्वेश्चन है पंकज भाई का। पंकज भाई प्लीज। हाँ, पंकज भाई प्लीज अनम्यूट योर। Saraiya sir, excellent speech, and everybody is impressed, and as you rightly said that most of the persons were aware, but how to practice it also you have explained very well. But आपने जो कहा कि बुखार आया तो 2-3 दिन तक रेस्ट लेना है, वो आज की लाइफ में डिफिकल्ट होता है। दूसरा आपने बोला कि ईश्वर पर श्रद्धा रखना, तो मैं 1-2 एग्जाम्पल दूंगा कि हमारे वेस्टर्न सबर्ब में एक बड़े नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर थे, उसके नाम पे गुजराती सेवा मंडल में एक वार्ड भी नेचुरोपैथ का चल रहा है। वो खुद 10 सेंटर हार्ट केयर के विदाउट दिस थिंग एनी बाईपास और एंजियोप्लास्टी हार्ट के मरीज को ठीक कर रहे थे, बट उनको जब ही हार्ट अटैक आया तो उसके फैमिली ने अलाउ नहीं किया, वो सब घबर गए और बाईपास सर्जरी की। वैसे ही मैं बताऊंगा कि धर्मगुरु जो लोग मेंटली काफी स्ट्रांग रहते हैं, जैसे आप है, वैसे चिन्मयानंद मिशन वाले की अमेरिका में ट्रिपल बाईपास सर्जरी हो गई। फिर पांडुरंग दादा शास्त्री की 2 बार लंदन में हार्ट की सर्जरी हो गई। फिर रत्न सुंदर महाराज साहब पद्म भूषण अवॉर्डी, बहुत ही पावरफुल मन के ऊपर कंट्रोल वाले, उनकी भी बाईपास सर्जरी हो गई। फिर अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश भाई, जिसके वर्ल्ड ओवर क्रोर्स ऑफ फॉलोअर्स है, उनकी भी एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी हो गई। तो क्या है कि हमें सर समाज में रहना है, समाज डज नॉट अलाउ, और सबको डर लगता है कि कुछ ये नेचर क्योर में बराबर सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। तो उसके वजह से ये हम सब तो आम आदमी है, मैं आपको आम आदमी नहीं समझता हूँ, यू आर वेरी स्पेशल, बट ये बड़े आदमी भी फॉलो नहीं कर सकते, तो हम आम आदमी डे टू डे लाइफ में इसको कैसे प्रैक्टिस करें, प्लीज एडवाइस। थैंक यू वेरी मच। हाँ पंकज जी, आपने बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब सुन के हम सबको हैरत होगा। देखिए,
इसका जवाब ये है कि जैसे कि आपने ये वर्ड सुना होगा अल्लाह, कुरान का वर्ड है अल्लाह, आपने सुना है ना? सब लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सुना है Yes, ना? sir. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अल्लाह का जो मीनिंग है वो बड़ा मस्त है। अल्लाह का मीनिंग है कोई खुदा नहीं सिवाय के खुदा। उसका मतलब है कोई खुदा नहीं सिवाय के खुदा। तो जैसे जैसे आपने कहा कि आपने मुझे बताया कि आप आम आदमी नहीं हो, आप स्पेशल हो, तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। कोई भी इंसान अगर अपने आप को खास बनाने जाएगा तो उसको भगवान सबके सामने खुला पाड़ेगा। गुजराती में बोले ना, तने खुल्लो पाड़ी दईश। खुदा बनवानी कोशिश ना करजे। डोंट ट्राई टू बी गॉड मैन। मैं सृष्टि, आई एम द सृष्टि का चलाने वाला, आई एम द गॉड, नो सन ऑफ गॉड, नो धर्म गुरु। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई धर्म गुरु हमें नहीं चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, सर्व धर्म गुरु पहले धार्मिक होते हैं, जैसे जैसे उनके अनुयायी आ जाते हैं वो भगवान बनने जाने की कोशिश करते हैं, सबको कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो हमें चाहिए सदगुरु। सदगुरु मतलब ये हमारे साउथ का सदगुरु नहीं, अंदर का सदगुरु। सदगुरु जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। सत्संग मतलब आपकी प्रार्थना, आपके अंदर के सांस के साथ सत्संग। सत्संग मतलब लोगों के साथ नहीं, लोगों के साथ जो करे वो तो संगति हो गई। जो इंसान एक दूसरे पे डिपेंड करता है वो भगवान को छोड़ देता है। हमें ग्रुप और समुदाय से कोई मतलब नहीं है। हमें कोई समुदाय मतलब के इसका धर्म उसका धर्म नहीं, धर्म एक ही है। देखिए ये सबसे बढ़िया वर्ड है सनातन धर्म। सच में देखा जाए सनातन धर्म वो हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म मतलब हमें इटरनल धर्म जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, और ये सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वर्ड अगर आप इस्लाम को वर्ड आप पूछेंगे तो वो भी सनातन ही हुआ। आप उनको किसी आलिम को पूछिए, मगर वो पता नहीं उनको मालूम है कि नहीं। इसीलिए पंडित हमको ही बनना पड़ेगा, हमें ही उपनिषद सीखना पड़ेगी, हमें ही कुरान सीखना पड़ेगा कि क्या सिखाया गया। जैसे हम वो सीखेंगे तो ये भटके हुए समुदाय बना के जो एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं वो बीमारी बुलाते हैं। कैसे हो सकता है? तुमको जो सांस दे रहा है मुझे दे रहा है, तुमको जो सृष्टि को चला रहा है वो मुझे चला रहा है। ये कैसे हो सकता है कि तुम अलग धर्म के और मैं अलग धर्म के? अरे मैं एक बार ट्रेन में मिला, अलग अलग लोग थे, हम लोग ने मिलके खाना खाया, कोई धर्म नहीं। जैसे हम अपने अपने ग्रुप में चले जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। तो बीमारी के लक्षण वहीं से शुरू हो जाते हैं। जो आदमी में अपने समुदाय का जो कहते हैं ना बाउंड्री डिफाइन, अगर आपने बाउंड्री डिफाइन करी तो आपके अंदर में कैंसर पैदा हुआ। कैंसर है क्या? अलग अलग सेल जो अपनी खुदगर्जी पे जी रहे हैं। मगर आपने अपने आप को सांस के साथ जुड़ा दिया, और सांस तो पूरा फैला हुआ है, जैसे सांसों की माला मीरा भाई का भजन है। तो उस इंसान को शरीर में बीमारी कैसे होगी? उसको कोई जकड़ नहीं सकता है। तो जो भी हमें किसी, देखो सबकी भावनाएं होती है, इसीलिए हम उस पर बात नहीं करते। मैं एक बार हमारे ही किसी लोग को बोला कि तुम जिसको धर्मगुरु मान रहे हो ना, उस धर्मगुरु को पैरालिटिक स्ट्रोक हो गया है। तो ये भगवान क्या मिसाल कायम कर रहा है? अगर हमारे सच्चे धर्मगुरु होते हैं आध्यात्मिक, तो उसको पैरालिटिक स्ट्रोक होता नहीं होता। भगवान उसके फॉलोवर का प्रूफ देता है। और आपका प्रूफ क्या है? देखिए ये अगर आप सीख रहे हैं तो आप मैं आपको सबको एक हेल्थ कार्ड देना चाहूंगा। एक आइडिया है। आपको पहला प्रूफ क्या होना चाहिए कि आपकी बीमारी चली जानी चाहिए। फिर आप अगर कहेंगे कि हाँ अभी मेरे पैर में नहीं दर्द हो रहा है, मेरे छाती में अब दर्द नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नाउ प्रैक्टिसिंग ट्रू आध्यात्मिक।
आप सच में धर्म के फॉलोअर हो गए, वो सांस के जुड़ा हुआ भगवान। अभी आप में भेदभाव नहीं है, तो अंदर से भेदभाव चले गया, आपका शरीर अच्छा हो गया, फिर आप प्रीच करो। पहले प्रैक्टिस करो, अनुभव करो, फिर बोलो। अगर मैंने 15 साल तक दवा नहीं ली तभी तो मैं आपके साथ बात कर सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग सुने, आज के बाद भगवान की कृपा का अनुभव करें, और ये भगवान सारे सृष्टि का भगवान है, उसको छोड़ के कोई, जैसे अल्लाह मीन्स नन बट गॉड। कोई लोग उसको बोलेंगे कि ये तो अथीस हो गया, भगवान को नहीं, सिर्फ भगवान, उसके सिवा कोई भगवान नहीं। तो आज के बाद हम किसी की प्रशंसा ना करें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मुझे खास मत बोलिए, मेरे लिए अजाब हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। आपको मेरे लिए भी प्रार्थना करनी है कि भगवान इस पे कृपा चालू रखे। 15 साल 30 साल पूरी जिंदगी साइकिलिंग का शौकीन हो, शांति से साइकिलिंग करता रहे। हमें कोई समुदाय को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सैंथोम में दरिया किनारे अच्छा हूं। आप कभी साउथ में आएंगे तो मेरे अतिथि बन सकते हैं, मगर मुझे कोई समुदाय नहीं बनाना है, कोई धर्म नहीं चालू करना है। जैसे धर्म चालू करा, आप अधर्मी हो गए। धर्म दिल में है, धर्म समाज में नहीं है। सोशलाइजिंग इज नॉट धर्म। सत्संग इज डिफरेंट, संगत इज डिफरेंट। कीप अवे फ्रॉम संगत। मैं स्लम्स में भी लेक्चर देता हूँ, बच्चों को भी लेक्चर देता हूँ। मैं 3 चीज सिखाता हूँ कि ये 3 चीज फॉलो करो, कभी बीमारी नहीं आएगी। एक चीज, कभी दवा मत लो। दवा में सब कुछ आ गया, दवा, दारू, सिगरेट सब आ गया। दूसरा, कभी लोन मत लो। हाँ, एक दूसरे से मदद ले लो, मगर इंटरेस्ट में कभी पैसे मत लो। ये सब व्यापारी को लिए तो तकलीफ आएगी नहीं, जैसा है हम चला लेंगे, और दूसरे मदद करने वाले मदद कर देंगे, या तो भगवान बारिश देगा, आपकी तरक्की हो जाएगी। मेरी लाइफ का सारा अनुभव ऐसा ही है। मेरे पास कोई LIC पॉलिसी नहीं है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कोई FD नहीं। और आखिर में थर्ड बात, कभी भीड़ में मत जाओ। अगर आप क्यू में खड़े रहते हो तो पीछे वाले का कर्ज मिलता है। क्यू में नहीं खड़ा रहना। वो बुफे में भी कोई लोग लाइन में खड़े रहते हैं ना, वहां पे नहीं। हमें या तो वो टेबल खाली होना चाहिए, या तो मैं पहले दूसरों को खाने दूंगा। ये क्या कि पीछे वाला खड़ा है और मैं आगे बैठा हूं। तो जहां पे भीड़, वहां पे बीमारी। तो फिर आप सोचिए कि कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाता है तो वहां तो भीड़ ही होती है ना। अब कबीर का दोहा कहता है, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो आप बाथरूम में भी उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जरूरत प्रार्थना की तो वहीं पे होती है, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। तो भगवान को सांस से साथ जुड़ा रखे। ये जो भी बात बोली है, ये संतों वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल फुल प्रूफ बात है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जो लखान आपको भेज रहा हूँ, कोई भी एक वर्ड आपको नहीं समझ में आया ना, तो आप अपने आप को उसको क्रॉस मत करिए। क्योंकि मैंने 35 इयर्स में जो मैट्रिक्स बनाए हैं, उसमें कोई एक वर्ड चीज भी नहीं समझ में आए, जार्गन को निकाल दिया है। ये जार्गन बोलते हैं ना, बड़े बड़े शब्द यूज करना। सिर्फ जात के अनुभव की बात करो, अपने अनुभव की बात करो। ये नाम, ये प्रथा, ये रिचुअल, ये फॉर्मेलिटी, ये सब ढोंग पाखंड से निकल जाओ। हम लोग सब बीमारी से बचना चाहते हैं। हमको हमारा खुद का मास्क पहनना बंद करें आज के बाद, और भरोसा सांस पे रखे। सृष्टि चलाने वाला आपकी जरूरत जब चाहे देगा। ये 6 मैट्रिक्स के लिए पेंडिंग रखता हूं, क्योंकि फिर सेशन पूरा मेरा मन चलेगा तो चालू ही हो जाओ। मगर आपको जैसे कुछ, जैसे महेश्वरी भाई ने कोशिश करी, और अभी 16 पीपल आर डूइंग द कोर्स। मैं क्या चाहता हूँ, ये 16 लोग सीख के और 6 को सिखाए।
तो भले भले मैंने अभी तो एक मामूली फीस रखी है, कोई किसी ने कहा इसकी फीस तो तुम्हें 1.5 लाख रखनी चाहिए, किसी ने कहा इसकी कम से कम 50,000 रखो, मगर पैंडेमिक टाइम में 50,000 कौन निकालेगा, शायद होता भी नहीं आजकल। तो मैंने बोला भले जितनी भी अच्छी बात हो, एक टोकन अमाउंट 6,000 की फीस रखते हैं। तो अभी मैंने वो 6,000 की फीस रखी है, मगर उसकी गारंटी ये है कि वो कोर्स करने के बाद अगर उसकी कीमत आपको 60 लाख की न लगे तो वो 6,000 वापिस। क्योंकि पैसे की बात ही नहीं है, ये तो पैसे इसलिए रहे हैं कि भाई कमिटमेंट हो। मगर इसमें भी मैंने देखा है कि कम फीस लिए है ना तो ये लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं। महेश्वरी भाई को भी मुझे यही कंप्लेन है। फिर मुझे दुख हुआ कि यार ये मैंने कुछ ज्यादा फीस लेनी जरूरी थी, तो बेचारे सीरियस आते। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं करेंगे तो नेक्स्ट रिपीट कराऊंगा उनको, ठीक है। तो आपसे सबसे निवेदन है कि आप मेरी बात को हवा में मत छोड़िए, मुझे पकड़िए। हमारे जो हेमंत शाह है और भरत देसाई है, वो लोग रिपीट कर रहे हैं। वो लोग ने मेरा प्रोग्राम चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन में करा है, उनको पकड़िए कि भैया आपने ये प्रोग्राम रखा है, अभी इसका पूरा इस पे पूरा ध्यान दीजिए, कम से कम बीमारी से मुक्त हो, फिर और अच्छी चीजें करेंगे। सही ठीक है, बात, सही बात। तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। ये बढ़िया आपने समय किया और गुड डील ऑफ लेसन्स टू यू। तो भरत भाई, आई रिक्वेस्ट यू। आवाज नहीं आ रहा है हेमंत भाई। तो आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? नहीं, आप हेलो। वो स्पीकर अपने पास रखिए। हाँ, मैं रखता है नाउ। हेलो, आई एम ऑडिबल? एम आई? No, no, no. नहीं। Okay, I तो भरत भाई understand. તમે કન્ક્લુડ કરી લો। I understand what you're trying to say. I will definitely conclude today's session. In fact, it is 1.5 hours. People are sitting and consciously listening, patiently listening. That is the key so that everybody wants health and happiness. सभी को दवा से मुक्ति चाहिए। हम लोग जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, हमारा जनरेशन जो अभी का है वो पिल पॉपिंग जनरेशन है। जैसे हम कुछ भी हुआ तो गोली ले लेते हैं। और मेरा खुद का अनुभव है जो मैंने शेयर किया था सरैया जी से, मेरे फादर के टाइम का भी वही मैंने किया था। मैं अगेंस्ट डॉक्टर जाके मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था और वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। जैसे सांसों का आपने बोला कनेक्शन करना, और बेसिकली जहाँ मैंने कहाँ पढ़ा था आपके ही सेशन में सर, तो मैं वो रिपीट करता हूँ कि बॉडी नीड्स हेल्थ, हार्ट नीड्स रिलेशनशिप, recognition needs social status, safety needs wealth and self needs dignity। ये जो है हमारे ये बेसिक पैरामीटर्स है मेरे ख्याल से। सैफी सर आगे बताएंगे उनके प्रोग्राम, जो 6 मैट्रिक्स का प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने जो आज बात की है वो सराहनीय है। और मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ सैफी सर का, हेमंत भाई का, और आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर किसी को भी कोई सवाल हो तो जो सोप बॉक्स का हमने इनविटेशन भेजा था, आप मुझे मेल कर सकते हो या सैफी सर को डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। वो अभी चेन्नई में है, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें बता सकते हैं या डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समय काफ़ी निकल चुका है। आई थिंक पराग भाई मेहता का एक क्वेश्चन था, उनको पूछना था। अगर पराग भाई है तो उनका एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पराग भाई, आई थिंक पराग भाई लेफ्ट द सेशन। आई थिंक इज लेफ्ट द सेशन। तो आज का सेशन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अल्प विराम जिन्हें कहिए। और इतना इंटरेस्टिंग सेशन है कि और 3-4 सेशन करने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर। सैफी सर का शुक्रिया अदा दिल से।
आज का हम सेशन यहाँ पे पूरा करते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. पंकज भाई अभी आए. वेरी गुड. ओके, वंडरफुल. आप लोगों से मिला और हम लोग चालू रहेंगे मिलना. हम लोग मिल के हमारे एक परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. हेमंत भाई थैंक यू, पंकज भाई, अजमेरा थैंक यू, थैंक यू सर. बाय. ऑल द पार्टिसिपेंट्स शुक्रिया. Thank you, sir. Thank you, Saki sir. इसका आप Nice to see you, सबको Amrita. Organizing these Yeah. wonderful programs. ये जो आज हमने जो बातें की है, सासों की बातें की है, वो आप शेयर करिए, खुद अनुभव करिए, अपने अनुभव पे आप विश्वास रखें और इसका प्रयोग भी करके देखिए. ऐसा नहीं है कि हमको बुखार आया तो इमीडिएटली क्रोसिन ले लेना. देखो, ट्राई करो. और ये पुराने सब जो चीजें हैं उन्होंने नई बात नहीं बताई, बट इन अ डिफरेंट मैनर, बिकॉज ये जो करना चाहिए था हम वो नहीं कर रहे और हम गोली ले रहे हैं. तो गोली हो सके उतनी अवॉइड कीजिए और ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, खुद का अनुभव करो और सैफी सर को कांटेक्ट करो, प्रोग्राम कीजिए ये, और बहुत ही अच्छा सीखने मिलेगा. लाइफ चेंजिंग सेशन होगा उनका. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. एसपी गोयंका जी ने भी बोला है विपाशना में सेम थिंग. बहुत अच्छे तरह आपने बताया. So I will end the session today, sir. Yes, please. Thank you so much. Thank you everyone. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे थर्सडे को सेम टाइम 7 से 8 बजे सोप बॉक्स टॉक्स. Yes. Lovely.